Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to give a read to the poem The World is Too Much with Us by William Wordsworth. We'll critically analyze the poem, find out the figurative devices, and will further go for its explanation and paraphrase, etc. Before going into the detail of the poem, I would first like to tell you something about the poet, that is William Wordsworth. So he's considered as one of the giant of English poetry and a great romantic poet who has really worshipped nature. Back to nature जो है ये स्लोगन था रोमांटिक मूवमेंट का, और यही चीज़ वर्ड्सवर्थ ने फॉर द फर्स्ट टाइम पोइट्री की डिफिनेशन भी ऐसे दी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंसिडर्स पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. उसकी राइटिंग में हम नेचर को कैपिटल एन से देखते हैं, इसलिए कि वो नेचर को अपना खुदा मानता था और मिस्टिक टाइप पोइट था, यानी कुदरत की हर चीज़ में उसे खुदा नज़र आता था. ये पोएम स्पेसिफ़िकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पस मंज़र में लिखी गई, जिसके नतीजे में लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए थे. तो एक्चुअली वर्ड्सवर्थ रेजेस हिज वॉइस अगेंस्ट द ह्यूमन बिहेवियर विच वाज डेवलप्ड इन द रिजल्ट ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज़ मनी मेकिंग, मटीरियलिज्म और नॉन एंडिंग रेस फॉर मनी और मटीरियल्स जो है ये आउटकम्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के. एंड एज अ रिज़ल्ट men were unaware and they were ignoring nature. So the poem is actually the complaint of Wordsworth against all these behavior of human beings. और अगर हम टाइटल की तरफ जाते हैं, The world is too much with us. The world too much with us. The title suggests two things like we are burden on the earth, या फिर this world or nature has been disturbed by us, by the people. कुछ भी हो, लेकिन अगर too much का लफ्ज़ हम देखें so this shows or it suggests that something annoying is out of limit now and it's a type of complaint कि बहुत too much हो गया. So actually the poet complains that we are so much engrossed and we are too much busy in worldly life and the modern economic system has destroyed our lives. अच्छा, पहले रीडिंग करते हैं और उसके बाद जो है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगी. लेटर ऑन इसका स्ट्रक्चर, फिगरेटिव डिवाइसेस और कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, getting and spending, we lay waste our powers, little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon, the sea that bears her bosom to the moon, the wind that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I'd rather be a pagan, suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blows his wreathed horn. So the world is too much with us mean we are so much busy in worldly life, we are engrossed. पूरी तरह से हम डूब चुके हैं दुनिया में और इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को फॉलो करने में मसरूफ़ हैं. पूरी तरह से हर वक्त इसी के बारे में सोच रहे हैं. लेट एंड सून, late mean in our past life and soon mean soon in coming life, mean in future. We are committing one mistake and that is getting and spending. So it is only the pursuit of materialism. हम सिर्फ मटीरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. Getting means we are earning. We think new ways of earning. कैसे कमाएं, कैसे ज़्यादा करें, जो हमारे पास पैसा है इसको डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें. तो दिन रात अर्निंग के नए नए तरीके सोचते हैं. एंड स्पेंडिंग, एंड देन हाउ टू स्पेंड दैट मनी. सो वी कंज्यूम ऑल आवर एनर्जी, जितनी भी हमारी पावर है, जितना भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, we just waste our capabilities in thinking how to earn and how to spend. इतनी सारी एनर्जीज ही हमने इस बात पे लगा दी हैं. Little we see in nature. Nature देखें कैपिटल एन से, मीन नेचर एक खुदा का दर्जा देते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को. दैट इज़ आर्स, मीन मनी जो है वो हमारी नहीं है, वो हम अर्न करते हैं, मुश्किलों से अर्न करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं तो चली जाती है. बट नेचर इज़ आर्स. बट unfortunately we little see in nature, mean we ignore nature, we even not feel the nature, we even don't see towards nature. That is ours mean उसके पास हमारे solutions का हल है. It consoles us, ये हमें इस peace देता है. तो इसका मतलब है जो चीज़ हमें peace देती है वही हमारी दोस्त है. हमें चाहिए कि हम उसी से connected रहें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे. We have given our hearts away.
मीन वी आर टोटली इन लव विद मटीरियल वर्ल्ड। हम अपने दिल दे चुके हैं इस दुनिया को और इसकी मटीरियल और मादी जो चीज़ें हैं उसको। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड मीन्स समथिंग डर्टी, अनप्लेजेंट, बैड। यहाँ पे मटीरियलिज्म से मुराद जो है उसको सॉर्डेड कहा गया है। एंड बून इज समथिंग विच इज़ अ बेनिफिट, एडवांटेज, जो बहुत प्लेजेंट हो, हेल्पफुल हो। सो दिस न्यू मटीरियलिज्म इज एक्चुअली अ वेरी बैड गिफ्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मीन जिस साइंसी तरक्की को और मटेरियल गेन को हम तरक्की समझते हैं, सो एक्चुअली इट्स अ बैड गिफ्ट या बैड ब्लेसिंग। सो इट्स एक्चुअली अ कर्स। और इस मटीरियलिज्म में पढ़कर हम क्या चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। सो इन दिस क्वाट्रेन द पोएट describes those elements of nature which we actually ignore. The sea that bears her bosom to the moon. So the sea displays its chest to the moon. तो ये समंदर जो चांद को अपना सीना दिखा रहा है, तो ये एक खूबसूरत इमेज है, एक खूबसूरत सीन है। और इसके अलावा the winds that will be howling at all hours, वो हवाएं जो हर वक्त चलती रहती हैं। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पढ़कर उसके पीछे भागकर वी मिस दीज टू थिंग्स व्हेन वी आर बिजी इन वर्ल्डली लाइफ। सो विंड्स दैट आर ब्लोइंग एंड प्रोड्यूसिंग अ स्वीट साउंड, हाउलिंग मीन्स हवा के चलने की जो आवाज़ होती है या जो सरसराहट होती है, तो वो हम इग्नोर किए बैठे हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अप गैदर्ड मीन्स all the winds are collected all together and the winds are silent now like sleeping flower. So like sleeping flower is a simile for this, for everything we are out of tune. तो ऊपर समंदर जो है वो चांद की रोशनी के आगे खड़ा है और इसके अलावा हवाओं की सरसराहट, उसका चलना, उसको महसूस करना, ये सारी चीज़ें फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, और एवरीथिंग जो नेचर की है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी are senseless now and we can feel all these beauties of nature. Out of tune mean we are disconnected, we are alienated from the things which feed our soul. जो nature है ये हमारी रूह की ग़िज़ा है and it keeps us spiritually joyous and happy. So because of materialism, humanity is disconnected now and something is wrong with humanity, and that is why we are not appreciating the beauty of nature and we pay no attention to nature. फिर यही जो नेचर की चीज़ें हैं, इट मूव्स अस नॉट, मीन वी बिकम सो सेंसलेस। हम अपने मटेरियल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ आवर मनी मेकिंग एटीट्यूड, हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते और ना ही ये चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं। तो यहाँ तक ऑक्टिव में जो प्रॉब्लम डेवलप किया मटीरियलिज्म की वजह से, जितने प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, पोइट ने उसको डेवलप किया। एंड नाउ इन दिस सिस्टेट वी सी अ शिफ्ट इन द आइडिया एंड दैट इज़ वाई ही एड्रेसेस ग्रेट गॉड। आइड रादर बी अ पैगन। पैगन यहाँ से मुराद प्री क्रिश्चियन, यानी जो ग्रीक लोग थे वो नेचर के देवी देवता और नेचर के हर ऑब्जेक्ट की इबादत करते थे, उसको वर्शिप करते थे। हियर एक्चुअली वर्ड्सवर्थ वांट्स टू से दैट इट वुड बी बेटर इफ़ ही वाज अ पेगन। और प्री हिस्टोरिक जो ग्रीक लोगों का रिलीजन है, जिनका गॉड ऑफ सी होता था, हर चीज़ के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के उनके गॉड्स होते थे, तो काश वो होता। एंड इन दैट केस ही वुड हैव बीन एबल टू फीड हिज सोल एंड टू रेज अप हिज सोल विद अ रिलीजन विच इज़ आउटडेटेड नाउ। यहाँ पे क्रीड जो रिलीजन की तरफ रेफर कर रहा है, यहाँ पे मेटाफर है एक मदर के लिए, यानी एंड सकल मीन्स टू फीड अ बेबी, और क्रीड यहाँ पे मदर हु नर्सेस हर चाइल्ड। तो उसकी रूह को एक्चुअली ऐसी माँ ने परवान चढ़ाया होता और ऐसी माँ ने फीड किया होता उसको, जो कि अभी आउटवर्न है, आउटडेटेड है। कम से कम वो आउटडेटेड रिलीजन उसके लिए बेहतर होता। सो इन दैट केस ही वुड हैव बीन कनेक्टेड विद नेचर। So here he talks about a kind of return towards nature, going back to Greek mythology and believing in the power of nature. और अगर वो इस तरह से पैगन होता और उसका कनेक्शन नेचर के साथ होता तो क्या होता? So I might standing on this pleasant lea. Lea means grassy green area. तो अब मैं यहाँ पे सरसब्ज जगह पे जो खड़ा हूँ, have glimpses. I would be able to see. So in that case I would have been able to see. Glimpses mean to see the image, तस्वीर देखना। मैं ऐसे मनाजिर देखता that would make me less forlorn. तो अगर मेरा कनेक्शन नेचर से होता और मैं उस तरह से वर्शिप करता नेचर को, पैगन होता, सो दिस नेचर कनेक्शन वुड हैव मेड हिम लेस डिप्रेस, लेस फॉरलोन, मीन्स बहुत अकेला मैं फील ना करता, जैसे अभी मैं अलोन फील कर रहा हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ। मीन फॉरलोन मीन्स अकेला महसूस करना। सो ही इज़ डिप्रेस
in that case, so he would have been more connected with nature. And in that case, he would have been able to see the sight of Proteus. एक तो वो अकेला महसूस ना करता, दूसरा वो Proteus को देख सकता था rising from the sea. So Proteus is an old Greek god of sea है और shape changing sea god माना जाता है इसको. इसके अलावा और here old Triton blows his wreathed horn, या फिर ट्रिटन जो कि हाफ डेमी गॉड है ऑफ सी, अगेन ये एक सी गॉड है, मैसेंजर इसको कहा जाता है. ब्लो मीन्स वो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता, हॉर्न इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, रीथ मीन्स गार्लैंड, फूलों से सजा हुआ जो उसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता. हॉर्न इज़ एक्चुअली एनिमल का जो सींग होता है, उसमें से जब ब्लो करते हैं तो एक म्यूज़िक निकलता था. तो वो कहता है कि ट्रिटन जो है उसको अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देख सकता था. So the main theme of the poem is relevant actually to today's society, and the main theme of the poem is that we should leave following materialism and enjoy the beauty and glory of nature, which is the real source of solace and happiness. Solace means peace, यानी mental सुकून जो है, peace वो हमें nature के साथ connection में ही मिल सकता है. Discussing the structure of the poem, so this poem is actually sonnet or Petrarchan sonnet है, जिसको इटालियन पोइट पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके 2 हिस्से होते हैं. फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टिव, जिसमें डेवलपिंग ऑफ द प्रॉब्लम होती है. जैसे इस पोएम के ऑक्टिव या 8 लाइन्स में, शुरू के 8 लाइन्स में वर्ड्सवर्थ मुसलसल बात करता है मटीरियलिज्म से पैदा होने वाली ख़राबियों का, कि हम मटीरियलिस्टिक बन चुके हैं एंड वी आर ऑब्सेस्ड विद एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स एंड मटीरियल थिंग्स एंड वी आर इग्नोरिंग नेचर. सिस्टेट जो कि लास्ट 6 लाइन्स हैं, इसमें सोल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का. तो वर्ड्सवर्थ सोल्यूशन ये बताता है कि काश वो पैगन होता, वो मोर कनेक्टेड होता नेचर के साथ, तो वो फॉरलोन और डिप्रेस्ड फील ना करता. सो सिस्टेट में हम शिफ्ट्स ऑफ आइडिया देखते हैं जो कि ऑक्टेव से डिफरेंट है. इस शिफ्ट्स ऑफ आइडिया को वोल्टा कहते हैं. और सिस्टेट का जो ग्रेट गॉड, जिसमें पोइट जो है एड्रेस करता है किसी चीज़ को, तो वो ग्रेट गॉड को एड्रेस करता है और यहाँ से शिफ्ट्स ऑफ आइडिया आता है. देखें, वो खुदा से कहता है कि काश मैं पैगन होता तो मुझे ये कनेक्शन जो है नेचर का वो हासिल होता और इस तरह के ग्लिम्सेस में देखता और मैं फॉरलोन नहीं होता. सॉर्डेड बून, दिस इज एन ऑक्सिमोरॉन जिसमें 2 ऑपोजिट वर्ड को इकट्ठा किया गया है. अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड मीन्स बैड, अनप्लेजेंट, डर्टी, और बून जो है वो प्लेजेंट है, प्लेजेंट गिफ्ट, जिसमें मटीरियलिज्म की तरफ वो रेफर करता है कि दिस मटीरियलिज्म एक्चुअली अ वेरी बैड गिफ्ट फॉर दिस ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं दिस सी दैट बियर्स हर बूजम पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम नॉन लिविंग चीज़ जो है उसको ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट करते हैं या ह्यूमन क्वालिटीज़ उसके साथ मंसूब करते हैं. तो सी चूँकि नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो उसका सीना नहीं है और वो इसको अनकवर नहीं कर सकता. दिस इज़ ह्यूमन क्वालिटी, बट द पोइट इज़ गिविंग दिस क्वालिटी टू सी विच इज़ नॉन लिविंग थिंग. तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. आगे अगली लाइन में भी winds will be howling. सो हाउलिंग इज़ रिलेटेड टू वुल्फ, अगेन दैट इज़ लिविंग थिंग, लेकिन विंड्स जो है उसको हाउलिंग कहा गया है, अगेन पर्सोनिफिकेशन. फिर हवाओं के मुतलिक कहा गया है एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. सो लाइक विद लाइक यू नो दैट वी यूज़ लाइक फॉर सिमिली. सोए हुए फूलों की मानंद की तरह सो रही हैं हवाएं अभी. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सिमिली. नेक्स्ट लाइन में अ पेगन suckled in a creed outworn. Creed is a metaphor for mother. मीन ऐसे माँ ने मुझे फीड किया होता. सो क्रीड इज़ एक्चुअली मदर जिससे वो अपनी सोल को फीड करना पसंद करता. नेक्स्ट लाइन में सो माइट आई स्टैंडिंग, यहाँ पे ग्रासी लैंड पे खड़े होकर मैं वो नज़ारे देखता कि प्रोटियस जो है वो राइजिंग फ्रॉम द सी एंड ट्रिटन इज़ ब्लोइंग हिज हॉर्न. So this is a type of imagery. Imagery means that poet is painting picture, a mental picture. आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है उस वर्ड्स के साथ और आप विजुअलाइज करते हैं, देख सकते हैं अपने इमेजिनेशन में उस चीज़ को. तो इन लाइंस में सिस्टेट के जो लास्ट 4 लाइंस हैं उसमें ये इमेजरी यूज़ की है पोइट ने. इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोइट अलूडेड टू ग्रीक गॉड, और एलूजन का इस्तेमाल किया हुआ है उसने. एलूजन मीन्स किसी भी हिस्टोरिक पर्सनैलिटी, किसी भी हिस्टोरिक चीज़ की तरफ, कल्चर की तरफ रेफ़र करना. तो प्रोटियस एंड ट्रिटन बोथ आर गॉड, सी गॉड हैं और हिस्टोरिक हैं, तो इसीलिए ये एलूजन हुआ. पहली लाइन में
late and soon, getting and spending. सिस्टर की शुरू वाली लाइन में देखें, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पेगन, तो इंजम्पमेंट है. इंजम्पमेंट मीन्स जब लाइन ख़त्म हो जाती है लेकिन आपकी बात जो है वो एंड नहीं होती और वो कंटिन्यू करती है, इट रोल्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन. जैसे देखें, आई वुड रादर बी अ पैगन, नेक्स्ट लाइन में आपकी बात चली गई है. दिस इज़ कॉल्ड इंजम्पमेंट. एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें रिपीटिशन ऑफ साउंड्स होती है. अगर ये साउंड्स वॉल होते हैं, वी कॉल इट एसोनेंस. आप अगर लाइन में देखें, और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लोज हिज रीथ हॉर्न, ओ जो है इसमें रिपीट हुआ है, जैसे और ओल्ड में, ट्रिटन में, ब्लोज में and horn में. So this is assonance. If the consonant sound is repeated, we call it consonance. So in the third last line, have sight of Proteus rising from the sea. S sound has been repeated. Note it down. देखें, sight Proteus rising sea. तो S sound जो है repeat हुआ है. This is called consonants. So I hope students you got all the important points about this poem. On a student's demand for a short video, I have explained the poem separately, and in the next video inshallah we will go for reference to the context, paraphrase and exercise question answer. So stay connected and keep learning. Thanks for watching my video.